principles of development. This will be quick. So बीएड में भी आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे कि डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके बेसिक फीचर्स क्या है. कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि इट इज एवर गोइंग, कभी खत्म नहीं होता, इट कॉन्टिन्यूज. डेवलपमेंट इज एन अनब्रोकन प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. Till death, it never stops. Language keeps growing even in adulthood with new vocabulary. Language आपकी you keep on learning. Language आप learn करते रहते हो. अभी मैं हरियाणा में रह रही हूँ. The time I start living in let's say south, तो आप एक point आएगा वहाँ के basic words समझने लगोगे. Then you will start speaking slowly. You will catch up the phrases. So that's how you very easily. That's how humans work. They learn the language very easily, right? Even starting from the childhood. एक बच्चा होता है वो अपने घर से ही बात लैंग्वेज पकड़ता है सबसे पहले. देन cephalocaudal, it means head to toe. Development is from head to toe. Physical development proceeds from the head downward to the feet. Now this I'll go into the biology. So when you are born, before you are born, आपका जब एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो सबसे पहले आपका ब्रेन, मतलब आपका हेड से डेवलपमेंट शुरू होता है. देन यू फॉर्म अ टेल लाइक स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू अ टेडपोल, राइट. बट वो आपकी स्पाइन फिर फॉर्म होती है. स्पाइन फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स ग्रो आउट होना शुरू होते हैं. योर फीट, योर लिम्ब स्टार्ट डेवलपिंग. बेबी फर्स्ट कंट्रोल्स नेक एंड व्हेन इवन इन्फेंसी में आता है एक बच्चा तो वो पहले अपनी नेक को बैलेंस करना सीखता है. फिर अपने शोल्डर्स पे उस नेक को बैलेंस करने के बाद वो अपने आर्म्स को फॉर्म करना आर्म्स को वर्कआउट करना सीखता है. एंड देन लेग्स is when they start walking. Crawling के बाद they start walking. That's how slowly from head to toe, cephalocaudal. Then proximodistal, center to periphery. Center means the center point to periphery. Periphery means outer region of anything. You can see my picture in this little circle. तो outside वाली boundary को हम periphery बोलते हैं. Now let's understand. Development proceeds from the center of the body outward to the extremities. Child controls trunk before fingers. Trunk refers here to the stomach area. तो before आपका अपर बॉडी आप पहले कंट्रोल करते हो रादर देन योर हैंड्स. आपके हैंड्स सबसे लास्ट में रिएक्ट करते हैं. देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. डेवलपमेंट में इंडिविजुअल, हर एक इंसान डिफरेंट तरीके से डेवलप करता है. जरूरी नहीं है कि जैसा मेरा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है या फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है मेरे ब्रदर या सिस्टर का सिमिलर होगा, राइट. एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट देयर ओन पेस. नो टू चिल्ड्रन आर आइडेंटिकल. खुद के बहन भाई भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि किसी, मतलब पेरेंट्स डोंट डू दैट. डोंट कंपेयर चिल्ड्रन. आपके खुद के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं. तो हाउ विल यू कंपेयर योर ओन चाइल्ड टू सम अदर पर्सन्स चाइल्ड हु इज far away from you, right? One child walks at 10 months, another at 14 months. Both are normal. दोनों अपने नॉर्मल पेस पे लर्न कर रहे हैं चलना, बट चल तो दोनों रहे हैं ना, बट द टाइम डिफरेंस वेरीज, राइट. दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस डू एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट. इट डज नॉट मीन कि सब लोग एक मतलब एक फिक्स्ड वे में डेवलप होंगे, नहीं. जनरल टू स्पेसिफिक integration. Now what does this mean? Responses move from whole body movement to precise and specific actions. पहले जब एक बच्चा, when a child is born, they are just randomly moving. ऐसे ही movement होती है. Baby waves the whole arm. Later learns to wave only the hand. Starting में बच्चे को नहीं पता होता है कि you have to wave like this. They do this and they do whatever they want, right? They don't even do it if they don't want to. But when they start developing, when they start growing and understanding, and that's how they develop, growing while understanding your surroundings. That is how you develop. तो ये general से specific में जाता है. Okay? They learn to not point the whole hand, but this finger, right? Heredity
X environment means heredity and environment. They both, neither genes nor environment alone shapes development. Both interact constantly. सिर्फ heredity से फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं है जो आपकी फैमिली से इनहेरिट किया है आपने सिर्फ उससे योर डेवलपमेंट वुड बी इम्पैक्टेड. द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू लिव इन, द सोशल एनवायरनमेंट, द फिजिकल एनवायरनमेंट, that all matters. ठीक है. musically gifted genes needs practice and teaching in environment. ठीक है. अगर किसी बच्चे को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है एंड उसके घर में मतलब द फैमिलीज ऑफ सिंगर्स, तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जस्ट बिकॉज एक म्यूजिकल फैमिली में आया है तो वो पैदा होते ही अच्छे से गाना आता होगा उसे. नहीं, you have to give them training, you have to get involved in that interest of theirs. तो उसको प्रैक्टिस चाहिए होगी जो कि आप उसको environment किसी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट या किसी टीचर से उसको गाइडेंस दिलवाओगे, right? Now there is a memory aid for you. Cephalocaudal is equal to head to toe and proximodistal means center to limbs. Proximodistal, this is the center and this is the periphery, the outside region, right? Cephalocaudal means head to toe. This is the head and the development ends happens from the outside region, right? सब पहले आपका माइंड डेवलप्ड होना चाहिए तभी बाकी सब काम करेगा ठीक से. ठीक है. धीरे धीरे योर नर्वस सिस्टम एक्ट्स. पहले आप सोचते ही हो ना कि मुझे कप उठाना है, तो फर्स्ट यू थिंक एंड देन योर हैंड्स एक्ट, right? That is how it works.